جبت لہو شفاعتی، جس نے میرے قبر کی زیارت کر لی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ یہ رسول پاک کا فرمانے عالیشان ہے۔ میرے ماموں مٹھو شاہ صاحب نے بھی نبی کا وہ دیار دیکھا ہے، نبی کا روضہ دیکھا ہے۔ تو پیارے آپ نہیں دیکھ سکے زندگی میں نبی کی محبت میں دنیا سے جانے والے ہیں، تو جب ملک الموت آئیں گے تو یہی بندے مومن کہے گا کہ سارے عالم میں وہیں پر کربلا ہوگا، سارے عالم میں وہیں پر کربلا ہوگا، کہ میرا سارے عالم میں وہیں پر کربلا ہوگا، میرے سرکار کا جو چاہنے والا ہوگا۔ موت سے کہیں گے اے اجل ٹھہر ذرا ان کو بھی آ جانے دے، نبی کو اے اجل ٹھہر ذرا ان کو بھی آ جانے دے، قبر میں پھر تو اجالا ہی اجالا ہوگا۔ ملک الموت سے کہیں گے کہ اے موت رک جا بھی، میرے سرکار آ جائیں گے تو قبر میں اجالا ہی اجالا ہوگا۔ بس یہ بات اپنی سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آج قابل مبارکباد ہے ہمارے شیر علی صاحب اور بغداد علی صاحب، محمد علی صاحب اپنے ابو کے مرحوم کے چہلم کے موقع سے اب سنجیدگی کے ساتھ غور سے سنیے گا، یہاں سے وہاں تک ہندو مسلمان بھائیوں سب لوگ غور سے سنیے گا میری بات کو۔ آج 40ویں کے موقع پر تینوں بھائیوں نے اتنے لوگوں کو بلایا، دعوت کا انتظام ہندو بھائیوں میں بھی ہوتا ہے، برہم بھوج لوگ کرتے ہیں، تمام لوگوں کو بلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں۔ اب غور کریں گے کہنے کا مقصد کیا ہے، سنیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جیتے جی اپنے ماں باپ کو وقت پہ 2 روٹی نہیں دیتے ہیں، اب مرنے کے بعد اتنا لمبا انتظام کرتے ہیں۔ سچائی ہے اس بات میں۔ طریقہ مصطفیٰ کیا، ہمارا اسلام کیا کہتا ہے، مذہب کیا کہتا ہے، دھرم کیا کہتا ہے، سنیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، نبی غور سے سنیے گا، بڑی اچھی بات ہے۔ میرے سرکار مدینہ منورہ میں جہاں ہمارے نانا نے جا کر کے ابھی زیارت کیا ہے سرکار کا روضہ، مدینہ کی گلیوں کو انہوں نے دیکھا ہے، قسم خدا کی۔ اسی مدینہ منورہ کی سرزمین ہے، ایک 8-9 سال کا یہودی کا بچہ تھا، باپ مر گیا نا، 8-9 سال کا یہودی کا بچہ ایک روز رو رو کے اپنی ماں سے کہنے لگا، اے میری ماں، یہودی کون؟ مسلمان نہیں ہوتے ہیں نہ ہندو ہوتے ہیں، وہ ایک الگ ہی ان کا دھرم ہے۔ وہ 8-9 سال کا یہودی کا بچہ رو رو کے کہنے لگا کہ میری امی جان، میرے باپ کو دنیا سے گئے ہوئے ایک وقت، ایک زمانہ گزر گیا ہے کہ میری ماں کئی دن ہو گیا کھانے کا ایک لقمہ ہمارے منہ میں نہیں گیا، ہمارے پیٹ میں نہیں گیا ہے۔ یہ میری ماں اتنا تو بتا دے، جب تمہارے جسم پر صحیح سلامت کپڑا تھا نا، میری ماں تم محلے میں جاتی تھی، محنت مزدوری کرتی تھی، اور یہ میری ماں محنت مزدوری کر کے لے کے آتی تھی، تم خود کھاتی تھی اور میری ماں مجھے بھی کھلاتی تھی۔ سنیے گا غور سے، اے میری ماں، اب تو جو ہے کئی دن ہو گیا کھانے کا ایک لقمہ ہمارے منہ میں نہیں گیا ہے، میری ماں اتنا بتا دے، تمہارے چچا کے لڑکے بھی ہم لوگوں کا خیال نہیں کرتے ہیں، ہمارے دیہات رشتہ دار بھی خیال نہیں کرتے ہیں، اے میری ماں اتنا بتا دے، میں اب بھوک سے مرنے والا ہوں، کیا مدینہ منورہ میں کوئی ایسا نہیں ہے جو میری ماں کھانے کا ایک لقمہ ہمیں دے سکے؟ اب ذرا سوچے، 8-9 سال کا یہودی کا بچہ رو رو کر کے اپنی ماں سے یہ کہہ رہا ہے، میری ماں میں بھوک سے مر جاؤں گا، مدینہ میں اتنے لوگ رہنے والے ہیں، کیا کوئی کھانے کا ایک لقمہ دینے والا نہیں ہے کیا؟ ماں نے کہا نہیں بیٹا، مدینہ میں کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا ہے۔ اے میرے لال سنو سنو، مدینہ میں ایک ایسی ذات ہے میرے لال، جو وہ ذات جو ہے تمہیں کھانا دے سکتی ہے۔ ماں سے جب سنا بیٹے نے کہا میری ماں ذرا اس ذات کا نام تو بتا دو، اسلام کے مقدس شہزادوں مچل جانا اپنے پیارے نبی کی بات پر۔ ماں کہنے لگی بیٹا، اسے آمینہ کا لال کہا جاتا ہے، اسے پیغمبر اسلام کہا جاتا ہے، اسے مسلمانوں کا نبی کہا جاتا ہے، مدینہ میں میرے لال تمہیں اور کوئی کھانا نہیں دے سکتا ہے، صرف پیغمبر
सलाम ही तुम्हें खाना दे सकते हैं। बच्चे ने कहा मेरी माँ तब मैं जाऊं? माँ ने कहा बेटा जो उनका कलमा पढ़ता है ना उसी को वो खाना देते हैं, उसकी हाजत पूरी करते हैं। बेटे ने कहा मेरी माँ मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं मुसलमान नहीं बनूंगा, मुसलमानों के नबी का मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा। जा रहा हूँ मेरी माँ कलमा पढ़ने के लिए कहेंगे मर जाऊंगा, कलमा नहीं पढ़ूंगा, भाग के चला आऊंगा। माँ ने कहा ठीक है बेटा जाओ। अब जब वो 8-9 साल का यहूदी का बच्चा गया ना तो इसी तरह मजमा लगा हुआ था, सहाबा कराम बैठे हुए थे। तो 8-9 साल का यहूदी का बच्चा मजमा को चीरता फाड़ता हुआ जा रहा है। गया सरकार के सामने जाकर के खड़ा हो गया। आमिना के लाल के सामने जब खड़ा हुआ ना एक सहाबी रसूल ने पूछा बेटा तुम किसके सामने खड़े हो, इनका चेहरा क्यों देख रहे हो? 8-9 साल का यहूदी का बच्चा कह रहा है कि मैं आमिना के लाल के सामने खड़ा हूँ, मैं मुसलमानों के नबी के सामने खड़ा हूँ। सहाबी रसूल ने पूछा बेटा कैसे तुम्हें मालूम हो गया यही मुसलमानों के नबी हैं? तो 8-9 साल का यहूदी का बच्चा कह रहा है इनकी आंखें बता रही है कि अल्लाह के रसूल की आंखें है, इनका चेहरा बता रहा अल्लाह के रसूल का यह चेहरा है। मैं समझ गया। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी ने फरमाया बेटा कैसे आना हुआ, क्या बात है? तब वो 8-9 साल का यहूदी का बच्चा रो रो के कहने लगा एक वादा कीजिए कि आप मैं अपनी बात बताऊंगा लेकिन आप मुझे कलमा पढ़ने के लिए नहीं न कहेंगे। मुसलमानों के नबी ने फरमाया बेटा तुमसे किसने कह दिया कि मैं कलमा पढ़ने के लिए कहूंगा? नहीं सुना हो पहले आप कलमा पढ़ाते हैं बाद में उसकी हाजत पूरी करते हैं। कुर्बान जाए अपने पैगंबर पर। उस नबी आखिर ज़माने ने फरमाया नहीं बेटा अपनी हाजत बयान करो, मैं तुम्हें कलमा पढ़ने के लिए नहीं कहूंगा। अल्लाह अकबर। अब 8-9 साल का यहूदी का बच्चा रो रो के कहने लगा मुसलमानों के नबी मैं 8-9 साल की उम्र का हूँ, मेरे बाप को मरे हुए एक वक्त गुजर गया है। मेरी माँ जो है मजदूरी में मोहल्ले में जाती थी, मेहनत मजदूरी करने के लिए जाती थी ना, मेहनत मजदूरी करके लेके आती थी। एक रोटी अगर आधा मुझे खिलाती थी, आधी रोटी अपने खाती थी। ये मुसलमानों के नबी हमारी माँ के जिस्म पर जो कपड़ा है वो भी फट गया है, पुराना हो गया है। मेरी माँ शर्म के मारे बाहर नहीं निकल पाती है। ये मुसलमानों के नबी कई दिन हो गया है खाने का एक लुकमा हमारे मुंह में नहीं गया, पेट में नहीं गया है। आप जो है कि मुझे खाना खिला दीजिए। हमारे रिश्तेदार दोस्त रिश्तेदार यार कोई काम नहीं आ रहे हैं। तब हमारे नबी क्या फरमाते हैं बैठ जाओ बेटा। मेरे नबी घर के अंदर तशरीफ ले जाते हैं और खाना लेकर के आते हैं और लाने के बाद उस 8-9 साल के यहूदी के बच्चे को अपने गोद में बिठा करके अपने हाथों से खाने का निवाला खिला रहे हैं, अपने हाथों से खिला रहे हैं। बेटा खा लो, खा लिया और खा लो बेटा मेरा पेट भर गया, और खा लो बेटा मेरा पेट भर गया। अल्लाहु अकबर। जब वो बच्चा जाने लगा हमारे नबी फरमाते बेटा थोड़ी देर और ठहर जाओ। घर में जा रहे हैं नबी कपड़ा लेकर के आते हैं, थोड़ा खाना पैक करके लेके आ रहे हैं। ले जाओ बेटा। ये किस लिए दे रहे हैं? कहा तुमने कहा तुम्हारी माँ के जिस्म पर कपड़ा फट गया है, उसे दे देना, अपनी माँ को खाना अपनी माँ को दे देना। अब 8-9 साल का यहूदी का बच्चा जब जाने लगा ना तो पैगंबर सलाम ने फरमाया ए मेरे बाबू सुनो सुनो, जा रहे हो ना तो जब तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो आधी रात को ये सोच करके चले आना कि मदीना के सारे दरवाजे बंद हो चुके होंगे, एक दरवाजा आमिना के लाल का खुला होगा, मुसलमानों के नबी का खुला होगा। जब 8-9 साल का यहूदी का बच्चा गया माँ को दिया खाना कपड़ा। क्या बेटा ये कौन दिया? क्या वही नबी ने? तुमने कलमा पढ़ने के लिए बात की थी ना, वो कलमा पढ़ने के लिए नहीं गए। तो बेटा जरा उनकी सूरत तो हमें बता दे, मेरे लाल जरा उनकी शक्ल तो हमें बता दे। तो बच्चा अपनी माँ से कहने लगा कि मेरी माँ उनका चेहरा फूलों से शगुफता है और चाँद से भी प्यारे हैं, फूलों से शगुफता है और चाँद से भी प्यारे हैं, वो नूरे बदन वाले सरकार हमारे हैं। मेरी माँ का प्रमाण है हुए में नबी सबको दरबार में
हमारे हैं, काले भी हमारे हैं। उस नबी का ये फरमान है, माँ मैं अब नहीं रहूंगा यहाँ। गया लड़का दौड़े दौड़े, ए मुसलमानों के नबी हमें कलमा पढ़ा दीजिए ना। कहा बेटा तुम्हें किसने कलमा पढ़ने के लिए कहा है? किसी ने नहीं कहा है, मैं अपनी मर्जी से मैं आपका कलमा पढ़ रहा हूँ। अल्लाहु अकबर। सहाबा ने पूछा इन पर दिल तुम्हारा आ गया है? कहने लगा हाँ, जब हमारे और आपके नबी ने उस बच्चे को कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करके मुशर्रफ बा इस्लाम फरमाया ना, तो वही बच्चा यहूदी का ये कहने लगा, खुदा ने क्या बनाई मोहनी सूरत मोहम्मद की, खुदा ने क्या बनाई मोहनी सूरत मोहम्मद की, हुआ शैदा के जिसने देख ली सूरत मोहम्मद की। अब इसमें ये बात एक नुक्ता निकला से, आज मेरे नबी गैरों को खाना खिलाने कपड़ा दे रहे हैं, और आज के कुछ लड़के ऐसे हैं जो अपने माँ बाप को खाना नहीं दे रहे, खाना नहीं दे रहे। कर डंके की चोट पर पहले सब में जा करके ईद के दिन पहले पहुंच करके नया नया कपड़ा लीलन का पहन करके और टाई बेल्ट लगा करके बड़का हमारे से भी बड़का टोपा लगा करके लाइन में जा करके ईदगाह में पहले खड़े हो जाएंगे। लगेगा ये बहुत पक्के मुसलमान है। ये इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि माँ बाप अगर जिंदा है ना, तो माँ बाप के जीते जी कदर किया करें, माँ बाप का जीते जी ख्याल किया करें। एक बात ये अर्ज करूंगा कि इस जो है कि दौर में चाहे हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने वाले हों, चाहे मजहब इस्लाम से ताल्लुक रखने वाले हों, बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो कहते हैं ना कि मेरे बाप आपने मेरे लिए क्या किया है। अल्लाह ना करे ये बच्चे ये जुमला अपने माँ बाप से कहा करे, माता शकूर साहब मरहूम दुनिया से चले गए। अल्लाह अकबर। लिहाजा मैं आपसे ये पैगाम आपको देना चाहता हूँ, आपसे ये रिक्वेस्ट करके कहना चाहता हूँ, अपने बाप को ये ना कहा करें मेरे बाप आपने मेरे लिए क्या किया है। बहुत सारे नौजवान जाहिलपना की बुनियाद पर या कम इल्मी की बुनियाद पर ये या घमंड की बुनियाद पर कह देते मेरे बाप आपने मेरे लिए क्या किया है। ए प्यारे बाप क्या करता है? मेरे हिंदू भाइयों मुसलमान भाइयों सुनिएगा गौर से, अरे बाप वो है जो मजदूरी करते करते फावड़ा चलाते चलाते बाप के हाथ की लकीरें घिस जाती है और बेटे कहते मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मौलाना साहब हैं, भूसी से फारिग हैं, पूछिएगा हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बाप जो है ना दरवाजे पर एक पेड़ की तरह होता है, साया दे या ना दे, फल दे या ना दे, फल दे या ना दे, साया देने के काम जरूर आता है। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, पूछिए शेर अली साहब से, बगदाद अली साहब से, मोहम्मद अली साहब से, क्या जिनके बाप दुनिया से चले गए होंगे उनके दिल से पूछिए कि बाप नहीं है तो उनके दिल पर क्या गुजर रहा होगा। यकीनन बाप रहता है ना प्यारे, जो बाप अगर कोई मुसीबत आती है बाप जो है उसे झेल लेता है। बाप चाहता नहीं कि मेरे बच्चे इस मुसीबत का सामना करे। सारे बाप जो है कि ऐसे होते हैं प्यारे, बहुत सारे नौजवान जो कह देते हैं मेरे बाप आपने मेरे लिए क्या किया है। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, अगर बाप है ना, अगर बाप है तो परेशानी हो, कोई भी दुख मुसीबत हो तो बाप की दुआएं लेकर के घर से निकला करो, कसम खुदा की कामयाबी आपके कदम को चूमती नजर आएगी। कहते हो मेरे बाप आपने मेरे लिए क्या किया है। सुनिए 2-2 साल बाप बाहर रहता है, विदेश रहता है, ताकि गांव में हमारे बच्चे सुकून से जिंदगी गुजार सके, हमारे बेटे अच्छे से जिंदगी गुजार सके, हमारे बच्चे किसी के सामने हाथ न फैलाए। बेटा जो है बाप सोचता है कि बेटे हमारे किसी के सामने हाथ न फैलाए, ये बाप सोचता है कितनी मुसीबतें उठाता है, कितनी परेशानियों का सामना करता है बाप, और वही बाप सोचता है कि मेरे बच्चे अच्छे से जिंदगी गुजारे। वही बेटे जब जवान होते हैं क्या देते हैं मेरे बाप आपने मेरे लिए क्या किया है। बाप का कलेजा फट जाता है प्यारे, बाप का सीना फट जाता है। लिहाजा ऐसा जुमला न कहा करें कि मेरे बाप आपने मेरे लिए क्या
کیا کیا ہے. اب ذرا سنیے گا غور سے پیارے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو منتیں مانگتے ہیں کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے گا تو اے مخدوم بابا میں آپ کے روزے پر آ کر کے چادر پوشی کروں گا, مخدوم بابا آ کر کے مرغا فاتحہ کروں گا, ہندوستان کے راجا خواجہ غریب نواز آپ کے مزار پر آ کر کے میں چادر پوشی کروں گا. ہزار روپیہ کی چادر پوشی کی منتیں مانگ کے آتے ہیں اور جا کر کے کہتے ہیں کہ بابا میرا کام ہو جائے تو میں 1000 روپے کی چادر پوشی کروں گا. پوشی کرتے ہیں چادر پوشی. اب اس میں نقطے کی بات کیا ہے سنیے گا. اے پیارے, منت مانگ کر کے آتے ہو اور یہاں پر گھر پہ اپنے باپ کے دل کو تکلیف پہنچاتے ہو, اپنے ماں کے دل کو ٹھیس پہنچاتے ہو, تو نہ ہندوستان کے راجا تم سے خوش ہو سکتے ہیں نہ مخدوم کچھوچا تم سے راضی ہو. بے شک بے شک سبحان نہیں خوش ہو سکتے یہ اللہ کے ولی. چاہتے ہیں کہ اللہ کے ولی آپ سے خوش ہو جائے, آپ سے راضی ہو جائے تو ماں باپ کو خوش رکھنا کرے. یقیناً مخدوم کچھوچا آپ سے راضی ہو جائیں گے, خواجہ غریب نواز آپ سے خوش ہو جائیں گے اور پروردگار عالم بھی راضی ہو جائے گا. توجہ ہے نا آپ حضرات کی؟ ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. اب سنیے گا میرے ہندو بھائی بھی دور و دراز سے سن رہے ہیں, آپ بھی غور سے سن رہے ہیں. میرے ہندو بھائی بھی کیا کرتے ہیں نا, دیکھا گیا سب کے لیے, سنیے گا سب کے لیے میسج ہے کہ لوگ جو ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ جب ساون کا مہینہ آتا ہے, ساون کے مہینے میں جاتے ہیں لوگ بول بابا دھام جاتے ہیں, کامریا لے کر کے پیدل جاتے ہیں. سنیے گا ہماری بات کا غلط مطلب مت نکالیے گا اور نہ اپنے میں مسلم کے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہنا چاہتا ہوں, آپ بھی میری بات کا غلط مطلب مت نکالیے گا. سنیے گا ایک جملہ جو ہے کہ نوٹ کریے گا میں کیا کر رہا ہوں. جب آتا ہے ساون کے مہینے میں بابا دھام جاتے ہیں, یہاں سے جل لیے اور لے کر کے جاتے ہیں بابا دھام چڑھانے کے لیے. بہت چلا جاتا ہے جل چڑھانے کے لیے لے کر کے جا رہے ہیں. آپ جائیں, یہ آپ کے دھرم کی بات ہے, یہ اسلام منع نہیں کر رہا, میں منع نہیں کر رہا ہوں. میں مسلمان ہوں, مجھے دھرم گرو کہا جاتا ہے, میں منع نہیں کر رہا ہوں. آپ کے دھرم کی بات ہے, آپ جائیں. لیکن ایک جملہ نوٹ کر لیں غیاث الدین کا کہ در پہ ماں باپ گھر پہ دروازے پر ایک گلاس پانی کے لیے چلاتے رہتے ہیں, لوگ ایک گلاس پانی نہیں دیتے ہیں, جا کر کے بابا دھام جل چڑھاتے ہیں. تو آپ کے دھرم کے حساب سے وہ آپ کے دیوی دیوتا خوش نہیں ہو سکتے ہیں. اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے دھرم کے آپ کے دیوی دیوتا خوش ہو جائے تو آپ سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پانی دیا کریں, ماں باپ کو کھانا دیا کریں, تب جا کر کے آپ کے دھرم کے حساب سے آپ کے دیوی دیوتا خوش ہوں گے. اور میں مسلم کے لوگوں سے بھی مخاطب ہو کر کہنا چاہتا ہوں, اے پیارے آپ جو ہے مرنے کے بعد ماں باپ کے آپ 40واں کرتے ہیں, برسی کرتے ہیں, کریں, منع نہیں کیا جاتا. ایک اور بات ذہن میں آ گئی, اپنی تقریر کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ فاتحہ میں 5 رنگ کا پھل ہونا چاہیے. لائیں, اگر سیب نہیں ملا نا تو نگرا چلے جاؤ بھائی, پھل لے کر کے آؤ, فاتحہ کرنا ہے. چلے جاؤ بھائی, اس میں کیلا نہیں ہے, سیب نہیں, انار نہیں ہے, 4 کو پھل ملا ہے اندر پور چٹی پر, چوگڑا بھی نہیں ملا, سلیم پور بھی نہیں, نگرا چلے جاؤ, 5 رنگ کا پھل ہونا چاہیے. بڑا پسند تھا 5 رنگ کا پھل. یہ مٹھائی لے کر کے آؤ, 5 رنگ کی مٹھائی. اے پیارے فاتحہ کراتے ہیں, کرائے, ثواب ملے گا, غریبوں کو کھلائے. لیکن غیاث الدین کہنا کیا چاہتا ہے کہ جیتے جی اگر ڈاکٹر نے کہہ دیا ان کو انار کا جوس ایک گلاس چاہیے, جیتے جی ماں باپ کو ایک گلاس جوس نہیں دیتے ہو, وقت پہ سیب نہیں کھلاتے ہو, مرنے کے بعد یہ کرتے ہو, تو یقین مارو پروردگار عالم آپ سے خوش نہیں ہو سکتا ہے. چاہتے ہو کہ ماں باپ خوش رہا کرے تو جیتے جی ماں باپ کی ضرورت کا خیال کرے. اگر ماں باپ خوش ہے تو میرا پروردگار عالم راضی, سبحان اللہ, میرا اللہ راضی ہو جائے گا. بے شک, بے لہذا ان سب باتوں کا خیال کیا کریں, باتوں میں کیا ہے, کیسے ماں باپ کا خیال کرنا ہے. لہذا اے اسلام کے مقدس شہزادو, جیتے جی اپنے ماں باپ کی قدر کریے, جیتے جی اپنے ماں باپ کا خیال کریے, ورنہ ماں باپ کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. بس اپنی تقریر 5-7 منٹ میں سمٹنے کی کوشش کو ختم کر رہا ہوں, سنیے گا غور سے. تقریر کا لب و لباب نچوڑ, آج پیارے میری بات کو یہاں سے لے کر وہاں تک ہندو مسلمان بھائیوں سب لوگ غور سے سنیے گا میری بات کو. پوری تقریر کا نچوڑ سماعت کر لیجئے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں, ابھی میں دیکھا ہوں کہ
हमारे मामू भी मेरे साथ में थे, बिलसरा रोड में गया था कुछ काम से। अल्लाह अकबर। मैंने देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा, आपके भी सामने ऐसा मामला आता है कि बलिया आप जाते हैं तो फल वगैरह ले करके जब आते हैं, लेकर के आते हैं किस लिए? अपने बच्चों की जरूरत के लिए, कि हमारे बच्चे छोटे छोटे खाएंगे जवान होंगे, हमारे बुढ़ापे की सहारे की लाठी बनेंगे। अपने बच्चों को अगर कहीं से मिठाई फल फ्रूट आ जाता है ना, अच्छा मिठाई निकाल करके अपने बच्चों के लिए रख देते हैं। लेकिन जब यही बच्चे जब जवान होते हैं, अल्लाह अकबर, संजीदगी के साथ गौर से ठंडे मिजाज से सुनिएगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो घर से निकलते हैं ना तो माँ बाप को गालियां दे करके निकलते हैं, माँ बाप को सलाम तक भी नहीं करते हैं। जो चचा लोग हमारे बूढ़े नाना की उम्र के, बाप की उम्र के लोग हैं ना, उनके करीब जा करके पूछिएगा, बूढ़े लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी क्यों हो रही है, शुगर की बीमारी क्यों हो रही है, हार्ट की बीमारी क्यों हो रही है, चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोगों, लोग अकेले में जाके बैठ के पूछिएगा ना तो यही कहेंगे, बाबू हम लोग उम्र से बीमार नहीं पड़े हैं, बल्कि अपने औलाद के टेंशन में हम लोग बीमार पड़ गए हैं, शुगर बढ़ गई है, बीपी की बीमारी हो गई है। अल्लाह अकबर। लिहाजा बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो घर से निकलते हैं तो माँ बाप से बातचीत तक नहीं, सलाम दुआ तो दूर की बात है, बातचीत तक नहीं करते, निकल जाते हैं। और सुबह को निकलते हैं ना तो जा करके दोस्तों में हंसी मजाक करते हैं, टाइम पास करते हैं, मेहनत मजदूरी शाम तक किए हैं, अब शाम को जब चलने लगे फल फ्रूट लेकर के चले हैं, लेकर के घर पे जब आते हैं ना, माँ बाप दरवाजे पर बैठे रहते हैं। सुनिएगा इस मेरी बात को गौर से, माँ बाप दरवाजे पर बैठ करके इंतजार करते रहते हैं, वो बेटा आया है नौजवान, माँ बाप से बातचीत तक नहीं किया, घर में चला गया। कभी कभी आप लेट होकर के आइए, लेट करके आइए, ठंडी का मौसम होना, बुढ़वा बुढ़िया माँ बाप दरवाजे पर बैठ करके इंतजार करते रहते हैं, मेरा बेटा आज क्या बात है, बहुत देर हो गई आया नहीं है। पोता पोती से पूछते, बेटा अरे राती है पोता बताओ तुम्हारे अब्बू कहाँ गए हैं, बहुत लेट हो गया अब तक आए नहीं है। यहाँ बात है लेकिन समझने की बात है, गौर कीजिएगा। दादा दादी पोता पोती से पूछते, तुम्हारे अब्बू अब तक नहीं आए, बेटा कहाँ है? नाती पोता को मालूम नहीं है। कुछ रात जब गुजरती है ना, बेटा जब आता है मौसम खराब रहता है, माँ बाप दरवाजे पर अपने लालचन चेहरा देते हैं, वो बदनसीब बेटा होता है तो माँ बाप से बातचीत तक नहीं करता है, घर में चला जाता है, मिठाई फल फ्रूट लिया भी रहता है ना, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो माँ बाप से छुपा करके धीरे से घर में लेके जाते हैं, ले जा करके बीवी बच्चों में बांट देते हैं। खिलाए बीवी बच्चों को, मना नहीं किया जा रहा है, लेकिन सुनिएगा जब बीवी बच्चों को खिलाते हैं, अपना मोबाइल में 2-2 घंटा फिल्म देखते हो, मूवी देखते हो, टाइम पास करते हो, उस वक्त जो है कि माँ बाप को नींद नहीं आती है, माँ बाप का कलेजा फट जाता है, माँ बाप रात भर सोते नहीं है, बल्कि माँ बाप करवटे बदलते रहते हैं, नींद नहीं आती है बच्चों के टेंशन में, और माँ बाप यही सोचते हैं, माँ रो के यही कहते हैं कि काहे भूल गईला माही का दुलार बाबुआ। सुनिएगा गौर से, कलेजा हिल जाएगा कसम खुदा की। जिन माँ बाप से आप छुपा के लेके जा रहे हैं, वही माँ बाप आपके बचपने में इतना खाने का ख्याल करते थे। काहे भूल गईला माही का दुलार बाबुआ, काहे भूल गईला माही का दुलार बाबुआ, कितना सेवा कैले माता जी तोहार बाबुआ। 9 महीना पेट में लेके माता तोहके ढोवली, 9 महीना पेट में लेके माता तोहके ढोवली, कितना दुख दर्द और पीड़ा से तोहके जन्मली, दूध छाती का पियौली, दूध छाती का पियौली, बार बार बाबुआ, काहे भूल गईला माही का दुलार बाबुआ। जो लोग कहते हैं मेरे बाप आपने मेरे लिए क्या किया है, सुनिएगा। पिताजी कितना कष्ट उठा के कमा के तोहके खियावल,
सच्चाई है कसम खुदा की। पिताजी कितना कष्ट उठा के माँ के तोह के खियावल, अपने बसर पुराना पहिनलन, नया तोह के पहिनावल। तोहरे पिताजी सन के करे, तोहरे पिताजी सन के करे, अरे दुलार बबुआ काहे भूल गईला माही का दुलार बबुआ। और सुबह शाम और दिन दोपहरिया, कुछ गद्दार बेटे माँ बाप कैसे होते, माँ बाप पे हाथ उठा देते उनके लिए। सुबह शाम और दिन दोपहरिया बुकबा तेल लगौली, मिस चाट के प्यार से तोहके मुहबा तोहार चोमली। तोहके जनली अपने परार के, तोहके जनली अपने परार के आधार बबुआ काहे भूल गईला माही का दुलार बबुआ। लिहाजा इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, मेरे हिंदू भाइयों, अपने माँ बाप को ये ना कहा करें मेरे बाप तूने मेरे लिए क्या किया है। लिहाजा बाप बहुत मेहनतें करता है। एक जुमला याद आ गया, इसलिए अपनी बात को खत्म कर रहा हो कि अगर रिश्तेदार अगर 5-10 हजार रुपया माँ बाप से मांग लेता है नौजवान, बाप कह दे मेरे अब्बा, बाप कह दे मेरे बेटे मेरे पास नहीं है लाल, कहाँ से 5-10 हजार रुपया दो। वो ससुराल में सालों से मांग ले, ससुर से मांग ले, दोस्तों से मांग ले, रिश्तेदारों से मांग लेता है ना, तो बाप को ताना देता है, अब्बा आपसे तो अच्छा हमारे ससुर जी है, आपसे तो अच्छा हमारे साले हैं, आपसे अच्छे तो हमारे रिश्तेदार है, दोस्त है, जो मेरी मुसीबत के मौके पर मेरे काम आए, मेरी मदद किए हैं। क़यासुद्दीन का एक जुमला हिंदू मुसलमान भाइयों नोट कर लो कि इस मतलबी दुनिया में, इस मतलबी दुनिया में, इस मतलबी दुनिया में अगर कोई आपकी मदद करता है तो उसके पीछे उसका मतलब छुपा होता है। बेमतलब के कोई आपकी मदद नहीं करता है, और कोई बेमतलब के अगर आपसे मोहब्बत करता है तो इस दुनिया में भी माँ बाप की बात है जो अपने औलाद से बेमतलब के मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। मैं मोहम्मद अली साहब से, शेर अली साहब से, बगदाद अली साहब से कहूँगा, बाप माँ दुनिया से चले गए, आपके भी चले गए होंगे। आप इतना डरा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमेशा कम से कम साल में नहीं, रोजाना नहीं माँ बाप के कब्र पे जाते होंगे, नहीं मौका मिलता होगा घर ही पे जुमेरात जुम्मा को, कुछ नहीं आप जानते होंगे, सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह 3 मरतबा कुल वल्लाह शरीफ 3 मरतबा पढ़ के हाथ उठा के अल्लाह से दुआ करते हैं, परवरदिगार या अल्लाह मैं कुछ नहीं जानता, पढ़ने में कुछ गलती हो गई हो, या अल्लाह अपने फजल से माफ कर देना मौला। इसका सवाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को पहुंचा दे मौला। उसके बाद या अल्लाह मैं कुछ नहीं जानता, इसका सवाब मेरे माँ बाप की रूह को पहुंचा दे मौला। या अल्लाह हमारे माँ बाप के गुनाहों को बख्श दे। मेरा ईमान है, बड़ा लंबा टोपी लगाया हूँ, मेरी दुआ रद्द हो सकती है। औलाद अगर अपने माँ बाप के लिए दुआ कर देना तो फौरन अल्लाह दुआएं कबूल फरमा लेता है। आप हमारी दुआ रद्द अल्लाह कबूल रद्द कर देगा, लेकिन औलाद से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ देना, अल्लाह की रहमत दरियाए रहमत जोश में आ जाती है। अल्लाह माफ फरमा दे। कोई जरूरी नहीं इसारी के इमाम साहब नहीं है, ग़यासुद्दीन को गाजीपुर से बुलाने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं है, एक ही पारा नहीं पढ़े हो, अल्हम्दुलिल्लाह कुल अल्लाह पढ़ करके आप सब लोग ये मामूल बना लें, पढ़ करके अपने मरहूमीन माँ बाप के नाम से, घर वालों के नाम से बख्शा करें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला, जो भी कुछ बोलने मतलब क्या हुई हो